بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کریں گے جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا نام ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت پروشی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے، گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے پوتے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے قینانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ ہاران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں تارخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاران میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل اور قرب و جوار کے علاقے پر مشتمل تھا۔ پھر وہ کنانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ راستے میں وہ ہاران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح ہاران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا،
हमने इब्राहीम को पहले से हिदायत अता फरमाई थी और हम उसे जानते थे, यानी हमें मालूम था कि वो इस मनसब की अहलियत रखते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया, और इब्राहीम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें दिल से घड़ देते हो। बिलाशुबा जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के हाथ से रिज्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम मेरी तकजीब करते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसका इआदा करेगा? ये अल्लाह के लिए आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी नई पैदाइश करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और तुम उसको ना जमीन में आजिज कर सकते हो और ना आसमान में, और ना अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और ना मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उस अल्लाह की मुलाकात से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। फिर उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि उसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग की सोजिश से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो सिर्फ दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब अता किए और पैगंबरी और किताब उनकी औलाद में ही मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला अता किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। दोस्तों, आपका वालिद बुतों को पूजता था, चुनाचे आपने सबसे पहले उसी को तौहीद की दावत दी, क्योंकि सबसे ज्यादा वही इस बात का हक रखता था कि पूरे खुलूस के साथ उसकी खैरख्वाही की जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद आज़र से मिलेंगे तो आज़र के चेहरे पर गर्दो गुबार और स्याही होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करें? वो कहेगा, आज मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, या रब, तूने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे उस दिन तो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इससे बढ़कर रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप रहमत से दूर जहन्नुम में जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने जन्नत काफरों पर हराम कर दी है। फिर फरमाया जाएगा, इब्राहीम, आपके कदमों में क्या है? वो देखेंगे तो नजासत में लिथड़ा हुआ बिज्जू नजर आएगा जिसे टांगों से पकड़कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मज़ाहिर कुदरत दिखाकर ईमान और यकीन का आला रुतबा अता फरमाया ताकि आप अपनी उम्मत को दावत तौहीद पुरजोर तरीके और दलाइल की रोशनी में दें। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने इसी तरह इब्राहीम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखलाए ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो उन्हें आसमान में एक सितारा नजर आया। वो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मतवज्जे किया
जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो? उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीज़ों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हाँ, जो मेरा परवरदिगार को चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते? भला मैं इन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक अमन और जमीयत की खातिर का मुस्तहिक है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मखलूत नहीं किया, उनके लिए अमन और जमीयत खातिर है, और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना और खूब इल्म वाला है। दोस्तों, इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान मनाजरे का जिक्र किया है। आपने ये वाज़ेह फरमाया कि रोशन सितारों की सूरत में नजर आने वाले अजराम फल्की माबूद होने के लायक नहीं। अल्लाह के साथ उनकी इबादत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मखलूक हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है। वो खालिक के बनाए हुए और उसके हुक्म के ताबे हैं। कभी तुलू होते हैं तो कभी गुरूब होकर नजरों से ओझल हो जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला से कोई चीज पोशीदा नहीं। वो अजली और अब्दी है, उसके साथ और कोई माबूद नहीं। सबसे पहले आपने ये वाज़ेह किया कि सितारे ये सलाहियत नहीं रखते। उसके बाद आपने चांद का जिक्र फरमाया जो सितारों से ज्यादा रोशन और ज्यादा खूबसूरत है, और आखिर में सूरज का जिक्र फरमाया जो नजर आने वाले अजराम फल्की में सबसे ज्यादा रोशन और खूबसूरत है, और वाज़ेह किया कि ये भी किसी के हुक्म का ताबे और मुसख्खर है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसी की इबादत मंजूर हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे कि मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मतवज्जे किया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो? उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनमें से नहीं डरता। हाँ, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मतलब ये कि मैं उन नाम नेहाद माबूदों से नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। ये किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, न सुन सकते हैं और न समझ रखते हैं, बल्कि वो या तो सितारों वगैरह की तरह रबूबियत के मोहताज और हुक्म के पाबंद हैं, या हाथों से घड़ के और तराश कर बनाई हुई मूर्तियां हैं। सूरह साफात में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इन्हीं यानी नूह अलैहिस्सलाम की पैरोकार में इब्राहीम थे जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों को पूछते हो? क्या तुम अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की और कहा, मैं तो बीमार हूँ। तब वो उनसे पीठ फेर कर लौट गए। फिर इब्राहीम उनके माबूदों की तरफ मतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलते नहीं? फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। वापसी पर वो लोग उनके पास दौड़ते हुए आए तो आपने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूजते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे, उसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसको आग के ढेर में डाल दो। गर्ज उन्होंने उनके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। इन आयात में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया है कि उन्होंने कौम की बुत परस्ती की तरदीद की और बुतों की तहकीर और तनकीस फरमाई और उनसे कहा
ये क्या मूर्तियां हैं जिनकी परस्तिश पर तुम मोतकिफ और कायम हो? उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। यानी उनके पास सिर्फ यही दलील थी कि बाप दादा का तरीका है कि वो अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक की इबादत करते रहे। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरीह गुमराही में पड़े रहे। इलावाजी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और कौम से कहा, तुम किन चीजों को पूजते हो? क्या अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगारे आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस आयत का मतलब यह है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाएगा जब तुम उसके पास जाओगे, जब दुनिया में तुम दूसरों की इबादत करते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे भी ये फरमाया, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज को सुनते हैं या तुम्हें कुछ फायदा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। यानी मुखालिफीन ने तस्लीम किया कि ये नाम नेहाद माबूद किसी की पुकार नहीं सुनते और किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी पूजा का सबब अपने जैसे जाहिल बुजुर्गों की पैरवी और तकलीद है। इसीलिए आपने उनसे फरमाया, तुमने देखा कि जिनको तुम पूजते रहे, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, वो मेरे दुश्मन हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है। ये एक नाकाबिले तरदीद सबूत है कि बुतों की अलवहियत का दावा बातिल है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे बेजारी का इजहार फरमाया और उनकी तौहीन की। अगर वो किसी का कुछ बिगाड़ सकते तो जरूर आपको तकलीफ पहुंचाते, और अगर किसी पर असरअंदाज हो सकते तो आप पर होते। कौम के बुत परस्त लोगों ने जवाबन कहा, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? यानी उन्होंने आपसे कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरह आप हमारे माबूदों की तौहीन कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर हमारे आबाओ अजदाद पर तान कर रहे हैं, आप ये बातें संजीदगी से कर रहे हैं या महज एक मजाक है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है, जिसने उनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और इसी का कायल हूँ। यानी आपने फरमाया, मैं ये बातें इंतहाई संजीदगी से हकीकत की बुनियाद पर कह रहा हूँ। तुम्हारा असल माबूद वो है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। वो तुम्हारा बल्कि हर चीज का रब है। उसने आसमान और जमीन को बेमिसाल पैदा किया है, लिहाजा वही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं इस हकीकत की गवाही देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। आपने कसम खा ली कि जब वो लोग जश्न मनाने चले जाएंगे तो आप उन बुतों के बारे में कोई तदबीर करेंगे जिन्हें वो पूजते हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात दिल में कही थी। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि बाज़ अफराद ने आपकी जुबान से ये बात सुन ली थी। दोस्तों, वो लोग साल में एक बार शहर से बाहर निकलकर ईद, यानी जिसे कौमी जश्न भी कहा जा सकता है, वो मनाया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने उस जश्न में शामिल होने की दावत दी तो आपने फरमाया, मैं बीमार हूँ, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह साफात में किया है। तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की और कहा, मैं तो बीमार हूँ। आपने कलाम में तो ये किया ताकि आप बुतों को पाश पाश करके उनके मज़ाहिब की गलती जाहिर कर सकें और सच्चे दीन की हक्कानियत वाज़े कर सकें। जब वो लोग ईद मनाने चले गए और आप शहर में अकेले रह गए तो आप जल्दी से लोगों की नजरों से बचकर बुतों के पास पहुंच गए। देखा कि वो बड़े शानदार माहौल में हैं और लोगों ने अपने ख्याल में उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए हैं, तो उनका मजाक उड़ाते हुए फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनकी तरफ मुड़कर दाएं हाथ से एक एक जरब लगाते गए, क्योंकि दाएं हाथ ज्यादा ताकतवर, शदीद, तेज और गालिब होता है। आपके हाथ में एक बसोला यानी लोहे का एक भारी हथियार भी जिसे आप कह सकते हैं, जिससे बढ़ाई लकड़ी काटते और तराशते हैं, वो था। वही मार मार कर उन्हें तोड़ फोड़ दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया में इन अल्फाज में किया है, जिसका तर्जुमा है, उन्हें तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय बड़े बुत के सबको तोड़ दिया।
शायद वो उसकी तरफ रजू करें। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने बसोला बड़े बुत के हाथ में दे दिया था ताकि ये तासुर मिले कि उसे अपने साथ छोटे बुतों की भी इबादत होते देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए उसने उन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया। जब लोग जश्न मनाने से फारिग होकर वापस आए पर अपने माबूदों की दुर्गत बनी हुई देखी, तब उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? अगर उन लोगों को अकल होती तो उनके माबूदों के साथ जो कुछ हो गया था उससे उन्हें हक की दलील समझ में आ जाती। यानी अगर ये बुत माबूद होते तो किसी भी बद अंदेश के खिलाफ अपना दिफा करते, यानी अपनी जहालत, हमाकत, जलालत और बेवकूफ़ी की बिना पर उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसको इब्राहिम कहते हैं, यानी वो उनके ऐब बयान करता है, उनकी तहकीर और तजलील करता है, उसने पीछे रहकर उन्हें तोड़ा है। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उनका जिक्र करता था, इससे मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, और अल्लाह की कसम जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे, यानी उसे बड़े इज्तिमा में लोगों के सामने हाजिर करो ताकि वो सब लोग उसकी बातें सुने और उसे मिलने वाली सजा देखें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने से असल मकसूद ही ये था कि सब लोग जमा हो जाएं ताकि तमाम बुत परस्तों के सामने उनका अकीदा गलत होने की दलील पेश की जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी मकसद के लिए फिरौन से कहा था, जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। अब जब सब लोग इकट्ठे हो गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का रद्द-ए-अमल देखना था और फिर उसका जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दिया, आइए दोस्तों आपको वो भी बताते हैं। जब सब लोग जमा हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मजमा आम में ले आए तो उन्होंने बात शुरू की और कहा, ऐ इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये काम भला तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये उनके उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। इसका मतलब ये भी बयान किया जाता है कि उसने मुझे उनके तोड़ने पर आमादा किया। उस कलाम में तारीज थी। असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों की तवज्जो उसी हकीकत की तरफ मबजूल करवाना चाहते थे कि उनके माबूद तो बोलने से भी कासिर हैं, इसलिए उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये महज आम पत्थरों जैसे पत्थर ही हैं और कुछ नहीं। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। यानी वो अपने आप को मलामत करने लगे और उन्होंने कहा, तुमने खुद ही ये गलती की कि उनके पास कोई चौकीदार या मुहाफिज ना छोड़ा। तब उन्होंने सर झुका लिए। कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यानी वो हैरत ज़्यादा रह गए कि क्या जवाब दें, और उन्होंने शर्म से सर झुका लिए और बोले, तुम जानते हो ये बोलते नहीं। यानी इब्राहिम, आपको मालूम है कि ये मुजस्मे बातें नहीं करते, फिर आप हमें क्यों कहते हैं कि इनसे पूछ लो? तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों को क्यों पूजते हो जो तुम्हें ना कुछ फायदा दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके? तुफ है तुम पर, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर भी, क्या तुम अकल नहीं रखते? दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तो वो लोग उनके पास दौड़ते हुए आए। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यानी वो तेजी से आपकी तरफ गिर पड़े। आपने फरमाया, क्या तुम ऐसी चीजों को पूजते हो जिनको खुद तराशते हो? यानी तुम इन बुतों की पूजा क्यों करते हो जिन्हें तुम खुद लकड़ी और पत्थर से तराश कर अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी शक्ल बनाते हो? हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। दोस्तों, कौम ने लाजवाब होने पर वही रवैया अपनाया जो हर सरकश और मुतकब्बिर शिकस्त खाने पर अपनाता है। लिहाजा मुशरिक कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निशाने इबरत बनाने का प्रोग्राम बनाया। अल्लाह ताला ने उनकी बुरी चाल का जिक्र करते हुए सूरह साफात में फरमाया, वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसको आग के ढेर में डाल दो। फर्ज उन्होंने उसके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हें ही जेर कर दिया। जब वो लोग बहसो मुनाजरे के मैदान में शिकस्त खा गए और उनके पास कोई दलील बाकी रही न शुबा जिसे दलील का रंग देकर पेश किया जा सके, तो उन्होंने हमाकत और सरकशी पर मबनी अपने मजहब की तायद के लिए
قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنے برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے انہیں حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو یعنی ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ دوستو، منجنیق کہتے ہیں ایک غلیل کو، جیسے ہم غلیل میں بنٹا رکھ کر پھینکتے ہیں، اسی طرح سے ایک بڑی غلیل نما ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر غلیل کی طرح کھینچا گیا اور آگ میں پھینکا گیا۔ یہ منجنیق جس نے بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہ بات ابراہیم نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا۔ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت کعب آبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پا جانا چاہی، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے۔ اور ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی، مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں۔ انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں مار دیا کرتی تھی۔
दोस्तों आइए अब तज़किरा करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मनाज़रे का। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी इब्राहीम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, वो बोला कि जिंदा करना और मारना तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो इसे मगरिब से निकाल दे। ये सुनकर काफिर शशदर रह गया और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस सरकश जालिम बादशाह से मुनाजरा बयान फरमाया है जिसने रब होने का दावा किया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी दलील को गलत साबित कर दिया, उसकी जहालत और कम अकली को आश्कारा कर दिया, दलील के मैदान में उसका मुंह बंद कर दिया और उसके सामने सीधा रास्ता वाज़े फरमा दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये बादशाह बाबुल का बादशाह था जिसका नाम नमरूद बिन कैनान बिन कौश बिन साम बिन नूह था। मुजाहिद रहमहुल्लाह ने यही फरमाया है। बाज़ उलमा ने इसका नस्ब इस तरह बयान किया है, नमरूद बिन फालेह बिन आबिर बिन शालेह बिन अरफखशंद बिन साम बिन नूह। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजरात बयान करते हैं कि ये शख्स पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, क्योंकि उलमा के कौल के मुताबिक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर थे। मोमिन तो जुल्कुरनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। उलमा फरमाते हैं कि नमरूद मुसलसल 400 साल बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेशे नजर रखा। जब उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, उसने अपने रब होने का दावा किया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उसके सामने 2 आदमी पेश किए गए जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया। इस तरह उसने ये फरेब दिया कि उसने एक को मौत दे दी है और दूसरे को जिंदगी बख्श दी है। इसका ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और न उसका मौजू मनाजरे से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हो गया कि उसके पास कोई दलील नहीं थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी उसकी फसाहत ये है कि जानदारों का जीना मरना एक आम मुशाहिदे की चीज है, क्योंकि ये वाकयात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते, लिहाजा जरूर कोई ऐसी जात मौजूद है जिसकी मशीयत के बगैर इन अशिया का वजूद में आना महाल है। लाजमी है कि नजर आने वाले वाकयात का कोई फाइल हो जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं और बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है और उन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नजर आते हैं और फिर उन्हें मौत से हमकिनार कर देता है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। उस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका ये मतलब है कि ये नजर आने वाले काम उसके कंट्रोल में है तो सरासर जिद और हट धर्मी का इजहार है। और अगर वो मतलब है जो कतादा रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है तो उसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक ही नहीं। उसने ना तो मुकदमे को गलत साबित किया है न दलील के मुकाबिल दलील पेश की, क्योंकि बहस में उसकी शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो हाजरीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी जिससे निहायत वाज़े तौर पर खालिक का वजूद और नमरूद के दावे का झूठा होना साबित हो गया। उसकी वजह से उसे सबके सामने लाजवाब और खामोश होना पड़ा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, लिहाजा तो उसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये मुसख्खर सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है जैसे उसे पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है।
अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसे कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता और मौत देता है, तो उस सूरज को मगरिब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहता है कर सकता है। उसे न मना किया जा सकता है न मगलूब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज पर गालिब होता है और हर चीज उसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है। हकीकत यह है कि तुझे मालूम है और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, सो तू इस कदर आजिज है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जाहिल और आजिज होना वाज़ेह फरमा दिया, लिहाजा उसके पास जवाब में कहने को कुछ न रहा, उसका मुंह बंद हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सुनकर काफिर शशदर रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। दोस्तों, रिवायात में आता है कि आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल ही में अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे तो वहां फ़िरौनों की हुकूमत थी और अमर बिन अमरतिल कैस वहां का फ़िरौन था, यानी बादशाह था, जो निहायत अयाश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फ़िरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल जवाब किए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही फ़िरौन आगे बढ़ा उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। उस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज न आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मजीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफिर के मकर को रद्द कर दिया और फाजिर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। यार दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फ़लस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा बीता तो एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप अलैहिस्सलाम हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी और फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आपका निकाह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और नौमौलूद बेटे को लेकर फ़लस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और न पानी ही का नामो निशान था। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतजार में तन्हा खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बिठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे।
हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ऐ इब्राहिम, हमें इस दश्त बियाबां में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बार बार फरियाद करने पर भी आप खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ इब्राहिम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने फरमाया, हाँ। और दोस्तों, बाज रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने जुबान से कुछ ना बोला क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म था और असबात में सिर्फ सर हिलाया था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने यह सुना, देखा तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए जहां से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उनको ना देख सकती थी, और फिर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए, ऐ परवरदिगार, मैं अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बसाया है ताकि ये नमाज पढ़े, तो लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से वापस पलट गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत साया फगन थी। अभी ज़ादे राह खत्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले आबे ज़मज़म जारी कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू न भरती, उसे बहने देती, तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरम का कबीला हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाजत से वहां आबाद हो गया, और फिर अल्लाह ताला ने जल्द ही उस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के जरिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हमने उस यानी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, ए मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। रिवायात के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 या 14 साल थी। और दोस्तों, अब बात करते हैं ज़िब्ह अजीम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी अजीज तरीन शय कुर्बान करने का हुक्म दिया। यह ख्वाब आप अलैहिस्सलाम को कई दिन तक लगातार नजर आता रहा, तो आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। हदीस मुबारका में है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा जाने का कसद फरमाया और साहबजादे को अपना ख्वाब सुनाया। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुमको ज़िबह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो ही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लेटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सरीह आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी को इनका फिदिया बना दिया और पीछे आने वालों में इब्राहिम का जिक्र बाकी छोड़ दिया कि इब्राहिम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। यार दोस्तों, यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई और उनको सादतमंद और फरमा बरदार बेटे की जगह जन्नत से बड़ी आंखों और सफेद रंगत का एक खूबसूरत मेंढा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने उस अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया। और दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की वफात और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाह की। रिवायात में आता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल थी कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा और दुनिया की अजीम तरीन साबिर और शाकिर खातून हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वालिदा से बिछड़ने का बड़ा गम था, बल्कि पूरा कबीला सोग में डूबा हुआ था। बनु जरम के लोगों ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को आबे ज़मज़म के चश्मे के करीब ही दफन कर दिया। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। चुनांचे कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी अमारा नामी खातून से कर दी
उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अहलिया और साहबजादे की याद सताई तो मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए। साहबजादे के घर का दरवाजा खटखटाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर न थे। उनकी अहलिया की सर्द मोहरी और नामुनासिब रवैये के बिना पर घर की चौखट तब्दील करने का मशवरा देकर चले गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए और वालिद का पैगाम मिला तो अहलिया को तलाक दे दी। कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। इस मर्तबा भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। दरवाजा खटखटाया तो अहलिया ने दरवाजा खोला। ये बनु जरहम के सरदार मजाज बिन अमर की साहबजादी थी। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ घर के अंदर बुलाया, उनकी खातर मदारत की, उनके हर सवाल के जवाब में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और फरमाया, इस्माइल आए तो कहना तेरे घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसे तब्दील ना करना। दोस्तों, अब बारी आती है बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। चुनाचे एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा तशरीफ लाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही और मदद से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर और मट्टी का गारा देते जाते थे। जैसा कि कुरान पाक में है कि जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादी ऊंची कर रहे थे तो दुआ भी करते जा रहे थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो उन्हें मजीद ऊंचा करने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निशानदही पर एक पत्थर ले आए, जिस पर चढ़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे। ये पत्थर खुदकार जीने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। जन्नत के इस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मुल्तजिम और हजर अस्वद के दरमियान काबा शरीफ की दीवार से मुंसलिक था। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दौरे खिलाफत में उसे वहां से हटाकर मौजूदा जगह नस्ब फरमाया। काबतुल्लाह की तामीर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जबल अबू कैस गए, जिसकी आगोश में जन्नत का एक और याकूत हजर अस्वद महफूज था। उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ये दूध से ज्यादा सफेद था, बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। कुरान पाक की सूरह हज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। और दोस्तों, ये अल्लाह ताला की कुदरत थी कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली ये सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। कुर्राए अर्ज़ो समा पर हर जी रूह ने उसे सुना। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दो अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से पैदा हुए, और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बदन से पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। और याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही इमामुल अनबिया, आकाए दो जहां, खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज हुए। जबकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में से जो अनबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में मबूस हुए, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हुआ। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक वाकया बयान हुआ है जो कि मशाहदा कुदरत की फरमाइश से मुताल्लिक है। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते और इसकी असलियत मालूम करने की जुस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ माबूद हकीकी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। कुरान पाक में इस वाक़े का यूं जिक्र किया गया है, और जब इब्राहीम ने अल्लाह से कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने इस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो,
फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन की तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ने लगे। दोस्तों, याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात से मुनकिरों को ये बातें दिखाना और समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, लेकिन जिनके दिल स्याह हों वो अल्लाह की कुदरत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, अब बात करते हैं नमरूद के हशर की। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अजाब इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ की शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और एक तवील मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसकी दुनिया से नेस्तो नाबूद होने की वजह बना। यह दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमजोर चीज से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर और तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। प्यारे दोस्तों, ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़े अहम वाकयात जो आपके सामने बयान किए गए। आखिर में बात करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल और आप अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन सरजमीन केनान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं। अलबत्ता एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफात अचानक हुई और आप अलैहिस्सलाम के दोनों पैगंबर बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पहलू में बस्ती हिब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रिवायात में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीनों नबियों की कबूर मुबारका इसी इमारत में है, जिसे हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। वल्लाहु आलम। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।